ہے، ان کی آنکھیں ہیں پر وہ نہیں دیکھتے، ان کے کان ہیں پر وہ نہیں سنتے، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ نہیں چھوتے، لیکن میرا اور آپ کا یسوع جو قبر موت پر فاتح اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، ہیلیلویا، وہ بولتا ہے، اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، ہیلیلویا۔ اس سے کہیے خدا نے کہا اے سیموئیل تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اگر آپ یسوع سے محبت کرتے ہیں تو آپ کہیں گے یس میں جیزس، یس میں موجود ہوں، میں موجود ہوں تاکہ تیری باتیں آج میری زندگی، میرے حالات کو تبدیل کر دیں۔ خداوند میں اپنے آپ کو خدا اس بڑی پاخدمت شاہی کہانت کے لیے، خدا اس بڑی ذمہ داری کے لیے خدا جو تو نے میرے سپرد کی کہ روح زمین میں رہتے ہوئے خدا تیری گواہی دی جائے۔ خدا آج فضل دینا، روح القدس کی رہنمائی کے اندر بولنے کا فضل بخشنا، یسوع کے نام سے آمین آمین۔ بیٹھ جائیے، سبھی بیٹھ جائیے۔ بائبل مقدس یہاں پر موجود ہے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں، اوکے۔ آئے میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا گیا، کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا گیا پہلا خط، اس کا 15واں باب اور اس کی دوسری تیسری آیت مقدسہ، آمین۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا گیا خط، اس کا 15واں باب، اس کی دوسری اور تیسری آیت مقدسہ، آمین۔ میں یہاں پر ریکویسٹ کروں گا، دیکھیے کتنے جو خدا کی عزت کرتے ہیں، آپ لوگ خدا کی عزت کرتے ہیں؟ میں نے اکثر دیکھا جب میسج ہوتا ہے، اسپیشلی بہنیں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوتی ہیں، کینڈلی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیے، ٹھیک ہے؟ جب خدا بولتا ہے تو آپ خدا کو عزت دیجیے، آمین۔ اسپیشلی بچوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، کتنے بچے یسوع سے محبت کرتے ہیں؟ اب کرتے ہیں یسوع سے محبت؟ تو میں ریکویسٹ کروں گا بچوں آپ بھی بڑے دھیان کے ساتھ خدا کا کلام سنیے گا۔ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، ایمان اور سننا کس سے؟ مسیح کے، آمین۔ آج ہم مسیح کا کلام سننے والے ہیں، میرے ساتھ مل کے سوالہ کی تلاوت کیجیے۔ اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرط کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، آمین۔ کلام خدا کا پڑھا جانا، سنا جانا میرے اور آپ کے لیے برکت کا، تبدیلی کا باعث بنے، آمین۔ آج ہمارا مضمون ہے خوشخبری، آمین۔ کیا ہے جی؟ اونچی آواز میں کیا مضمون ہے؟ خوشخبری، آمین۔ انجیل اربع، جب یوحنا کی انجیل کو شامل کیا جاتا ہے، انجیل ثلاثہ، انجیل اربع، یعنی 4 اناجیل کو اناجیل اربع کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اناجیل اربع۔ اناجیل اربع جو ہے، اس کے لیے انگلش کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے گاسپل۔ کیا جی؟ لفظ کون سے استعمال ہوتا ہے؟ اونچی آواز میں لفظ گاسپل کیا استعمال ہوتا ہے؟ اب گاسپل کے جو معنی ہے وہ ہے خوشخبری، آمین۔ گاسپل کے کیا معنی ہے؟ خوشخبری، ٹھیک ہے، اوکے۔ اب خوشخبری کس کو کہا جاتا ہے؟ خوشخبری کے معنی وہ ہے وہ خوشی کی خبر جو مسکراتے ہوئے سنائی جائے۔ کیا ہے جی؟
वो खुशी की खबर जो मुस्कुराते हुए सुनाई जाए। आमीन। अब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुशखबरी क्या है कि यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मर गया, दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा। आमीन। यीशु मसीह का मरना खुशखबरी है। आमीन। ये खुशी की खबर जो है कई लोग बड़े दुख की हालत के अंदर सुनाते हैं। इस बच्चे को जरा क्लोज करिए तो उसको बाहर नीचे भेज दीजिए। कसम बच्चे इसको बाहर निकाल दो या इसको पीछे पीछे खड़ा कर दो। ओके। वो खुशी की खबर जो मुस्कुराते हुए सुनाई जाए। कैसे सुनाई जाएगी? यानी सुनने वाले के चेहरे पे भी खुशी और सुनाने वाले के भी। क्या जी? सुनने वाले के भी। आप खुशखबरी कैसे सुन रहे हैं? खुश होकर सुन रहे हैं तो फिर चेहरों पर भी खुशी हो। आज खुशखबरी का पैगाम। हमें जब तक खुशखबरी का पैगाम ना दिया जाए तब तक याद रखिए ना तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है और ना ही जिंदगी के अंदर इनकलाब आ सकता है। खुशखबरी का पैगाम हमारी खुशी के लिए बहुत ही जरूरी है। हमें याद रखिए खुशखबरी का पैगाम जो है हमारे नजदीक खुशखबरी क्या होती है? किसी का प्राइज बोर्ड निकल आए तो हम खुशखबरी देते हैं। किसी के यहाँ बेबी हो हम खुशखबरी देते हैं। किसी की कमेटी निकल आए, कुछ भी हो जाए हम खुशखबरी देते हैं और मुबारकबाद देते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन याद रखिए जो खुदा के लोग हैं उनके लिए खुशखबरी की क्या अहमियत है। ज़बूर 51 उसकी 8वीं आयत पढ़े कोई भी। 51 8वीं आयत मुकद्दसा। ज़बूर 51 उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा। ज़बूर 51 उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा। कोई भी बुलंद आवाज के साथ। ज़बूर 51 8 8वीं। ओके। क्या मुझे कौन सी खबर सुना? केड़ी खबर सुननी है? हालेलुया। आगे पढ़े आगे पढ़े। क्या क्यों सुननी है? ताकि वो हड्डियां जो तूने तो डाली हैं शादमान हो। आमीन। मुझे क्या कर खुशी और खुशखबरी की क्या सुना जी? खबर सुना ताकि वो हड्डियां जो टूट गई हैं उनके अंदर क्या आ जाए जी? शादमानी आ जाए। फिर ज़बूर इमसाल 15 बाब उसकी 13वीं आयत को भी पढ़ दे। इमसाल 15-13 पढ़ दे कोई भी। देखिए खुशखबरी जो है वो आपकी हड्डियों के लिए ताजगी का बाइस है। खुशखबरी किसके लिए जी? हड्डियों के लिए है, ताजगी का बाइस है। इमसाल 15-13 को पढ़ दे। खुशदिली उमदा रूही पैदा करती है और दिल की गमगीनी से इंसान शिकस्ता खातिर होता है। हमें क्या होता है जब खुशखबरी सुनते हैं तो क्या होता है? दिल शादमान हो जाता है। अब जो खुशखबरी से शादमानी मिलती है उसके ताल्लुक से लिखा है कि खुदा नहमिया उसके 8 बाब 10वीं आयत के अंदर खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। क्या है? खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। हमें खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। हमें और यशायाह कहता है 12वें बाब की 3री आयत के अंदर तुम खुश होकर नजात के चश्मों से बढ़ोगे। हमें तुम खुश होकर कहां से बढ़ोगे? नजात के। जब तक खुशखबरी नहीं आएगी तब तक खुशी नहीं आएगी। खुश रहने के लिए खुशखबरी का पैगाम जो है वो नहायत ही जरूरी है। हमें अब गॉस्पेल खुशखबरी का पैगाम। अब पौलुस रसूल जो है वो इस चैप्टर के अंदर 4 दफा खुशखबरी का लफ्ज इस्तेमाल करता है। कहता है कि ये बात मुझे कहां से पहुंची? ये बात मुझे खुदाओं से पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ। हमें क्यों हुआ? हमारे गुनाहों के लिए हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक मर गया,
किताब मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ और किताब मुकद्दस के ही मुताबिक मृतों में से जी उठा। आमीन। वो इसको खुशखबरी कहता है। और याद रखिए, पौलुस रसूल की तालीम का, उसकी तबलीग का, उसकी मनादी का जो मरकजी मजमून है वो खुशखबरी है। आमीन। पौलुस रसूल की तालीम का मरकजी, बुनियादी, या कह सकते हैं उसकी जो मजमून है वो खुशखबरी है। और इस आयत मुकद्दसा में वो 2 दफा खुशखबरी का लफ्ज बयान करता है। आमीन। ये खुशखबरी जो है उसने सिर्फ रसूलों से नहीं सुनी, ये खुशखबरी उसने इब्तिदाई कलीसिया से नहीं सुनी, बल्कि वो इस बात का इजहार करता है ये मकाशफा पौलुस रसूल को खुदा की तरफ से पहुंचाया गया। कैसे पहुंचाया गया? वो इस बात के इकरार करता है ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। और पौलुस रसूल इस बात की तस्दीक करता है, इस बात को पूरे वसूख के साथ कहता है कि ये इल्हाम बड़ा रास्ता उसको खुदा की तरफ से मिला। आमीन। ये उसे कहां से मिला? डायरेक्ट बड़ा रास्ता उसको खुदा की तरफ से मिला। गलतियों पहला बाब उसके 15वीं निकालिए जरा मेरे साथ, गलतियों के नाम पर रसूल का लिखा गया खत। इससे पहले मैं खुशखबरी की बुनियाद आगे जाऊंगा, इसकी बेहतर तौर पर इसकी बुनियाद जो है वो रखना चाहूंगा ताकि आप लोग खुशखबरी के पैगाम को समझ जाएं। गलतियों के नाम पर रसूल का लिखा गया खत, उसका पहला बाब 15वीं आयत से। ओके, मैं पढ़ देता हूं। सफा नंबर जो है ये है 178 नंबर 178। ओके, गलतियों के नाम पर रसूल का लिखा गया खत, उसका पहला बाब 15वीं आयत लिखा है, लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी मां के पेट ही से मखसूस किया, जिस खुदा ने मुझे मेरी मां के और अपने फजल से बुलाया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं। क्या करूं? क्या दूं? उसकी खुशखबरी दूं। पौलुस रसूल इस बात को समझ गया कि मुझे बुलाए जाने का मकसद जो है वो यही है कि मैं खुशखबरी का पैगाम जो है वो आम कर दूं। क्या कर दूं? वो आम कर दूं, खुशखबरी का पैगाम आम कर दूं। ओके, फिर वो कहता है मैंने गोश्त और खून से सलाह ली, ना तो मैंने गोश्त और खून से सलाह ली। वो कहता है ये जो मुकाशफात है ये मेरे आजाद किए हुए नहीं है, ये खुदा के रूह के हैं। इसीलिए वो कहता है कि ना तो मैंने गोश्त और खून से सलाह ली और ना यरूशलेम में उनके पास गया। किनके पास गया? कलीसिया के पास गया। ना तो यरूशलेम में किनके पास गया? कलीसिया के पास गया, पतरस के पास गया, ना तो मैं यूहन्ना रसूल के पास गया। कहता मुझे खुदा ने बुलाया जिस मकसद के लिए, उसने मुझको वो पैगाम भी दे दिया जो खुशखबरी का पैगाम है। हालेलुया। कहता ये तो ना मैंने गोश्त से ना खून से या मुकाशफात को समझा, ना मैं इब्तिदाई कलीसिया के, ना तो मैं यरूशलेम के अंदर गया, उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे। वो कहता है बल्कि फौरन अरब को चला गया, फिर वहां से दमिश्क को वापस आया। मैं कहां चला गया? अरब को चला गया। अरब से जब वो दमिश्क के अंदर आया और जब रसूलों की पहली कौंसल जो है वो मुनक्कद की गई रसूलों के माल के अंदर, पहली दफा यरूशलेम के अंदर पौलुस रसूल ने तब शिरकत की थी। हमें जब पहली कौंसल जो है रसूलों के माल के अंदर, रसूलों की कौंसल, ईमानदारों की कौंसल, पहली कौंसल जब बनाई गई तो पौलुस रसूल उसकी जब पौलुस रसूल को इल्म हुआ कि रसूलों के कौंसल है तो ये खुशखबरी देता वहां पर पहुंचा। मैं वहां से खुशखबरी लेके नहीं आया बल्कि देता हुआ वहां पर पहुंचा और पहली दफा वो यहूदियों की कौंसल के अंदर जो है वो वहां पर आया। और पौलुस रसूल जब अरब के अंदर चला गया, दमिश्क के अंदर चला गया, फिर जब वो आया तो वो खुशखबरी का खाना बनकर यरूशलेम के अंदर आया था। हमें इसलिए वो कहता है ये बात ना तो मुझे खून ना गोश्त है। और इसलिए देखें पौलुस रसूल के नजदीक सलीब का पैगाम जो है वो सबसे अहम तरीन है। इसका पैगाम ये इसके लिए गला कदर अकीदा है और इसकी बुनियादी उसूल है। और सच्चाई से ये मैं बताता चलूं, ये सच्चाई की महरब का दरमियानी पत्थर
और कोने के सिरे का पत्थर है। और इस अमर की तस्दीक इस बात से होती है कि कुतुबे मुकद्दसा में, जो बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, कुतुबे मुकद्दसा को पढ़ते हैं, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि सलीब सिर्फ मसीहों का निशान ही नहीं बल्कि ये पुरजोर कलाम भी है। हालेलुया। ये मसीहों का निशान ही नहीं बल्कि ये पुरजोर कलाम भी है। आमीन। सलीब वो है जहां पर लोग जो है वो गुनाह से, सलीब जो है वो लोगों को गुनाह की तरफ कायल कर सकती है। और जब हम सलीब के पास आते हैं फिर मसीह के जलवे से अपने पोशीदा गुनाहों को देख सकते हैं। आमीन। क्या करते हैं जब सलीब पहले क्या करती है, एक गुनाहगार को कायल करती है तो वो क्या है जी, गुनाहगार है। आमीन। फिर क्या होता है जब वो सलीब के पास आता है फिर मसीह के जलवे से उसके गुनाह उस पर जाहिर होते हैं। आमीन। पोशीदा गुनाह भी जाहिर हो जाते हैं। आमीन। बाइबल मुकद्दस में सलीब खुदा का जबरदस्त नूर है। सलीब क्या है? खुदा का जबरदस्त नूर है जो खुदा की मोहब्बत और इंसान की आजिज़ी, खुदा की पाकीज़गी और इंसान की निजात जाहिर करता है। आमीन। जिस तरह पुराने अहदनामा के अंदर बाइबल बयान करती है कि अहद अतीक के अंदर सेमिनार के अंदर भी कफारे के ताल्लुक से सिखाया गया। अहद अतीक के अंदर, और मैं कफारे की डेफिनेशन करता जाऊं, जो कफारा है वो हदिया जो लेने और देने वाले दोनों को कुर्बत के अंदर ले आए। कफारा क्या होता है? वो हदिया जो लेने और देने वाले को क्या करते जी, कुर्बत के अंदर ले आए। आमीन। कुर्बत के अंदर ले आए। अब अहद अतीक के अंदर मज़बा, अब देखते हैं मज़बा कुर्बानी, बागदन के अंदर पहली कुर्बानी हुई मज़बा, खून। और नए अहदनामा के अंदर जो बाइबल का मरकज है वो सलीब है। क्या है जी? नए अहदनामा के अंदर मरकज क्या है? सलीब है। आमीन। मैं जब गौर कर रहा था खुशखबरी के पैगाम पर तो अहद जदीद में मसीह की सलीबी मौत को बयान को ऐसी अहमियत हासिल है। और ये बयान सिर्फ छोटे खतूत के सिवा, सिर्फ याद रखें यीशु मसीह की सलीब का जिक्र है वो 3 खतूत के अंदर नहीं है। कितने खतूत के अंदर? फिलमून के अंदर इसका जिक्र आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद इसका जिक्र जो है वो आपको यूहन्ना के दूसरे और तीसरे खतूत के अंदर नहीं मिलेगा सलीब का। ओके। यीशु के लहू का मिलेगा, सलीब का नहीं मिलेगा। ओके। और अगर हम मुकद्दस मत्ती की मार्फत इंजीली बयान को बागौर पढ़े तो इसमें हम देखेंगे कि मत्ती मसीह की मौत की पेशन गोई को 2 तवील अबवाब के अंदर लिखता है। कितने अबवाब के अंदर? 2 तवील अबवाब के अंदर, लंबे अबवाब के अंदर लिखता है, जिसमें 141 आयतें मुकद्दसा। कितने? 141 आयतें मुकद्दसा के अंदर मसीह की मौत का बयान करता है। फिर मरकस जो है वो 16 अबवाब की किताब में से 2 बड़े अबवाब जो है वो मसीह की इस मौत पर वक्फ कर देता है। उसकी मसीह की सलीब का पैगाम को समझने के लिए वो क्या करता है, वो 2 अबवाब को जो है वो अलग कर देता है और मसीह की गिरफ्तारी, उसकी सलीबी मौत के बयान को 2 बड़े अबवाब में वक्फ कर दी। मुकद्दस यूहन्ना की किताब का नस्ब से ज्यादा हिस्सा, यूहन्ना की इंजील जब पढ़ते हैं तो ये आधे से ज्यादा हिस्सा जो है ये मसीह के दुख उठाने, सलीब पर उसके खींचे जाने के हाल को बयान करता है। और माल की किताब की मुनादी और माल की किताब को आप पढ़ ले तो मुनादी यही की गई है। माल की किताब के अंदर मुनादी ही यही की गई है। ठीक है। और इसका आज का मरकजी पैगाम खुशखबरी का मरकज मसीह की मौत और उसका जिंदा होना था। यह खुशखबरी है। अमाल 1 बाब 3 आयत के अंदर आप पढ़ लीजिए। ठीक है। पेंटिकोस्ट के दिन जब मुकद्दस पतरस के वाज का लबे लबाब यही था कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब पेंटिकोस्ट के दिन जब रूह को नाज़िल हुआ, जब पतरस जो है वो 3000 की जमात में खड़ा हुआ, उसने यही पैगाम दिया कि यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आमीन। और बाइबल मुकद्दस के अंदर वो इस बात को वाज़ेह करता है, ये खुदा का मुकर्रर करता इंतजाम इल्म साबिक के मुताबिक किया गया। और वो इस बात का ऐलान करता है कि तुम बेशरा लोगों के हाथों से वो सलीब दलवा कर मार डाला गया। पतरस क्या कहता है?
तुम बेशरा लोगों के हाथों में मेरा यीशु सलीब देकर क्या है जी, मार डाला गया। आमीन। और अमाल 3 उसकी 18 बाब से 22 तक का पढ़ ले, माल 4 बाब 1 को पढ़ ले, ठीक है। और ये मैं बताता चलूं, जब ये पैगाम सदूकियों, आज लोग कहते हैं कि यीशु मसीह की सलीब, और याद रखिए यीशु मसीह की सलीब जो है ये हमारे ईमान की बुनियाद है। क्या है? हमारे ईमान की पुलिस। देखिए ये बिल्डिंग है, जब इस बिल्डिंग को आपने तोड़ना होगा क्या करेंगे आप? अगर आपने छत नीचे गिराना है तो क्या करेंगे? इसकी दीवारें गिराएंगे। क्या करेंगे? इसकी। अगर आप नहीं गिराएंगे तो छत नीचे नहीं गिरेगा। अब मसीह ईमान की सबसे पहली बुनियाद यीशु मसीह पर कलीसिया बनाई गई। किस पर कलीसिया बनाई गई? तो साढ़े विच उठ के कई मनादी कर देनी, पतरस ने कलीसिया रखी गई मसीहों में से। भाई जो कलीसिया यीशु की, यीशु अपनी कलीसिया को लेने आएगा। आमीन। पतरस तो खुद कहता है वही कोने के सिरे का रद्द किया पत्थर है। आमीन। कलीसिया की बुनियाद जिस लफ्ज पर है वो यीशु मसीह खुदा का बेटा। किस पर है जी? यीशु मसीह खुदा का, ये कलीसिया की बुनियाद है। फिर उसके बाद कलीसिया की जो बुनियाद है, आज पुलिस ने यही किया है कि बुनियादें, जब किसी बिल्डिंग की बुनियादें कमजोर हो जाती है ना, फिर वो हिलना शुरू हो जाती है। अब पुलिस को पता है बुनियादें क्या है। आज जितने तराजात मसीह की सलीब पर लगाए जाते हैं, इतने कहीं भी नहीं लगाए जाते, कहीं भी नहीं लगाए जाते। लेकिन याद रखिए, इसकी तरीही शहादत मैं आपको देता चलूं। अब यरूशलेम के अंदर जब सदूकियों तक ये खुशखबरी का पैगाम पहुंचा, फरीसियों तक पहुंचा, सनहेड्रिन तक पहुंचा, हरीतियों तक पहुंचा, फिर उन्होंने भी एक कौंसिल बनाई। उन्होंने क्या किया? फिर एक कौंसिल बनाई। और एक कौंसिल जब किसी बात की तस्दीक करती है तो भाई ये बात सच है। बात क्या है जी? सच है। मेरे साथ हवाला देखनी यहूदियों की कौंसिल ने क्या कहा यीशु की सलीब के ताल्लुक से। ईमान 5:28, ईमान 5:28 निकालिए जरा। ईमान रसूलों के ईमान 5:28 आयत के अंदर देखें कि उन्होंने क्या उन्होंने कहा। कि हमने तो तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम ना देना, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना। आमीन। अब क्या याद, जब यहूदियों की कौंसिल बैठी, इसके अंदर सनहेड्रिन भी आई, सदूकी भी आए, फरीसी भी आए, हरीदी भी आए, जितने भी वो लोग थे जो यीशु मसीह की सलीब तक उसे पहुंचाने में जिनका हाथ था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक कौंसिल बनाई, एक कमेटी बनाई, जिसके अंदर सारे बड़े बड़े ओहदेदारों को बुलाया गया और उनके अंदर रसूलों को बुलाया गया। किनको बुलाया गया? पहले उन्होंने अपनी मीटिंग की, उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्या हमने तुमको सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम ना देना, ये नाम लेकर तालीम ना देना। और फिर वो कहते हैं कि मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी। क्या कर दी? उन्होंने तालीम क्या फैलाई कि यीशु मसीह जो सदूकियों ने कत्ल करवा दिया, वो यीशु मसीह जो हरीदियों ने सलीब पर दे दिया, वो यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें गुनाहों से पाक करता है। यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब ये तालीम जो है ये यरूशलेम की गलियों के अंदर गूंजने लगी, ये यरूशलेम की फजाओं के अंदर गूंजने लगी, फिर यहूदी भी जो है वो भी एक दफा हिल गए, सदूकी भी हिल गए, फरीसी भी हिल गए। उन्होंने कौंसिल की, उन्होंने कहा क्या तुम्हारी मुनादी का ये मकसद है कि तुम हमें गुनाहगार बनाना चाहते हो? वो इसका गलत मतलब समझे। वो क्या समझे? इसका मतलब गलत समझे कि शायद ये खून जो है वो हम पर क्या करना चाहते हैं? लगाना चाहते हैं। लेकिन उनके रसूलों की खुशखबरी का मकसद किसी पर खून नहीं लगाना, बल्कि लोगों को खुदा के पास लाना था। आमीन। क्या था जी? अभी तक खुशखबरी का पैगाम नहीं समझे, अभी तक नहीं समझे, बल्कि इसको ऑपोजिट ले लिया उन्होंने। कहते हैं क्या तुमने ये तालीम यरूशलेम के अंदर फैला दी, उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते। वो खुशखबरी का पैगाम नहीं समझे, आज भी नहीं गई समझी। आमीन। अगर खुशखबरी का कोई पैगाम समझ जाए, मैं आगे जाकर बताऊंगा क्या क्या होता है खुशखबरी से। ये सिर्फ अभी इसकी कह सकते हैं थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन खुशखबरी की बयान कर रहा हूं। आमीन। अब
स्तिफनस को शहीद किया जा रहा था रसूलों के माल के अंदर, तो स्तिफनस ने क्या तकरीर की पता है आपको? स्तिफनस ने क्या तकरीर की? उसकी जो तकरीर का खुलासा था, उसकी जो प्रीचिंग का खुलासा था, वो यही था कि जब उसको संसार किया जा रहा है, जब उसको पत्थर मारे जा रहे हैं, जब और लिखा है उसको पत्थर मारे जा रहे हैं, लेकिन वो मुसलसल खुदा का कलाम सुना रहा है, सुननी दिया हमें। वो खड़ा है और उसको उधर से भी पत्थर पड़ रहे हैं, इधर से भी पत्थर आ रहे हैं, चारों तरफ से पत्थर आ रहे हैं, लेकिन वो पत्थर खा रहा है, उठता हुआ गिरता हुआ। और याद रखिए, जो यीशु से मोहब्बत करते हैं, मैं एक हिस्ट्री पढ़ रहा था मुकद्दस पौलुस रसूल की, लिखा है जब इसको लाया गया टहरे के अंदर, कोई बात ये यीशु का इनकार कर दे, क्या कर दे? यीशु का इनकार कर दे। इसने कहा ये मुमकिन नहीं कि मैं यीशु का इनकार कर दूं, ये मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा पौलुस तो रोमी है, हम तुझे मौका देते हैं, इनकार कर दे यीशु का, नहीं तो तेरी जो सारा ये तलवार से कलम कर काट दिया जाएगा। उसने कहा भाई कोई बात नहीं। लिखा है जब उसके सर पर तलवार मारेगी, किसके जी? पौलुस रसूल के, उसका गर्दन जो है वो सर से जुदा हो गई। जब उसका सर नीचे आया तो आवाज आई यीशु। क्या आवाज आई? सर नीचे लगा है। जब ऐसे उन्होंने पीछे से तलवार चलाई, सर क्या है? बंधा हुआ है, सर नीचे लगा और सर से मुंह से आवाज निकली यीशु। फिर उसका सर जो है वो जमीन से फुटबॉल की तरह उठा, फिर आवाज आई यीशु। जब तीसरी दफा सर नीचे लगा तो पानी का चश्मा वहां से निकला है। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, जब यीशु का नाम लेते हैं फिर पानी के चश्मे जो है वो जारी हो जाते हैं। हालेलुया। गर्दन कट गई पर जुबान ये कहने से बाज न आई यीशु है। इसको भी देखिए, स्तिफनस को भी देखिए, खुदा से किस कदर मोहब्बत करता है। ये भी इस बात की वजाहत से तालीम देने लगा कि क्या तुमने उस यीशु को कत्ल कर दिया है, उस यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया। उसकी भी स्पीच का जो मकसद था वो यही था कि वो खुशखबरी का पैगाम इन संसार करने वालों को दे दे। क्या कर दे? इन मारने वालों को खुशखबरी का पैगाम दे दे। हमें याद रखिए, कलीसिया उस वक्त तरक्की करती है जब खुशखबरी का पैगाम समझ आती है। हमें एक शख्स की रूहानी तरक्की में खुशखबरी का पैगाम अहम किरदार अदा करता है। कर्नेलियस को जब पतरस रसूल ने खुशखबरी सुनाई, अमाल 8:35 आयत के अंदर, और लिखा जब उन्होंने सलीब पर लटका कर मार डाला और इसको खुदा ने 30 दिन जलाया और जाहिर भी किया। कर्नेलियस को क्या खुशखबरी सुनाई गई कि उन्होंने क्या किया? यीशु को सलीब पर मार डाला और उसने खुदा ने उसको 30 दिन जलाया और जाहिर भी किया। ठीक है। अगर मैं आपको बताता चलूं, अगर आप बीमार हैं, अब मैं खुशखबरी के पैगाम की तरफ आ रहा हूं, अगर आप बीमार हैं, अगर आप बीमारी में जिंदगी गुजार रहे हैं, आज सुबह आपके लिए खुशखबरी है। आज सुबह क्या है आपके लिए? खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? पहला पतरस 2 बाब 24 आयत निकाले, खुशखबरी का पैगाम क्या है? आमीन। अगर डॉक्टरों ने आपको कह दिया आपका इलाज है, आप मेडिसिन खाकर तंग आ गए हैं, आप जिंदगी के अंदर तंग आ गए, अगर आप बीमारियों से तंग आ गए हैं, तो निकालिए मेरे साथ पहला पतरस 2 बाब 24 आयत निकालिए। पहला पतरस 2 बाब 24 आयत, कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ दे इसको। पहला पतरस 2 बाब 24 आयत। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए कहां चला गया जी? सलीब पर चढ़ गया, सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हालेलुया। क्या हुआ जी? मिलके कहिए, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। उसके मार खाने से हमने, उससे कहिए, उस ऊंची आवाज में कहिए कि यीशु तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई। ऊंची आवाज में, यीशु तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। आमीन। खुशखबरी का पैगाम यह है, अगर आप बीमारी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप दवाइयां खाकर तंग आ गए हैं, आप जिंदगी से तंग आ गए हैं, खुशखबरी यह है कि यीशु मसीह के मार खाने से आपके बदन के अंदर बीमारी राज नहीं कर सकती, आपके बदन के अंदर बीमारी ठहर नहीं सकती, क्योंकि
यीशु मसीह के मार खाने से हमने शिफा पाई है, इसलिए हमारे बदनों पर ना तो किसी बीमारी का कोई हक है, ना तो किसी लाचारी का कोई हक है, ना तो किसी कमजोरी का कोई हक है, क्योंकि यीशु के मार खाने से अब हम कमजोर नहीं रहे बल्कि हम जोरावर हो गए हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमें तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हालेलुया। ये खुशखबरी का पैगाम है जो शायद 53 बाब के अंदर लिखा है कि वो हमारी मशक्कतें उस पर डाल दी गई, हमारी मशक्कतें उस पर डाल दी गई और उस पर सियासत की गई ताकि हम शिफा पाए। आमीन। उस पर क्यों सियासत की गई? ताकि हम शिफा पाए। आमीन। खुशखबरी का पैगाम आपके लिए है। अगर आप बीमार हैं, आज बाइबल का खुदा आपको खुशखबरी देता है। खुदा का खादम होने के नाते मैं आपको खुशखबरी देता हूं, आपकी बीमारी आपके बदन पर नहीं ठहर सकती। हालेलुया। आपकी बीमारी आपके बदन पर नहीं ठहर सकती, क्योंकि यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है। और जब यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है, फिर इस बीमारी का कोई हक नहीं हमारे बदन पर, कोई हक नहीं इस बीमारी का। मैं फिर मैं आपको बताता चलूं, खुशखबरी का पैगाम यह है कि अब आप गुनाहगार नहीं हैं, अब आप गुनाहगार नहीं हैं। अगर मैं इस तालीम पर फोकस इसलिए करता हूं, अगर लोग खुशखबरी के पैगाम को समझ जाएं, लोग क्या करें? खुशखबरी के पैगाम को समझ जाएं। ये जो उज़र पेश की जाती है कई बातों पर, ये नहीं होगी। फिर जो भी खुशखबरी के पैगाम को समझ गया, फिर वो उसने कोई उज़र पेश नहीं की। आज बपतिस्मा की सही तालीम से वाकिफियत इसलिए नहीं है कि लोग कलीसिया खुशखबरी के पैगाम को नहीं समझी। कलीसिया क्या जी? इमाम रोमियो छठा बाब निकालिए साहब, रोमियो छठा बाब निकालिए। रोमियो के नाम पर उस रसूल का लिखा गया खत, उसका छठा बाब निकालिए। रोमियो के नाम पर उस रसूल का लिखा गया खत, छठा बाब निकालिए। क्योंकि बहुत सारी बातें जो वो खुशखबरी के पैगाम से समझ आती हैं, लेकिन आज खुशखबरी के पैगाम को ना समझने की बदौलत जो है हम कई तरह के ज़हनी टेंशन के अंदर हैं। अब खुशखबरी क्या है कि यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमें अब यहाँ पर पौलुस रसूल क्या कहता है? बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहे? बस हम क्या कहें, क्या ताकि फजल ज्यादा हो रही किस नहीं? हम गुनाह के एतबार से क्या है जी? हम गुनाह के एतबार से मर गए। जब गुनाह के एतबार से मर गए तो फिर गुनाहगार ना रहे। जब गुनाह के एतबार से मर गए तो फिर गुनाहगार ना रहे। जब गुनाह के एतबार से मर गए तो गुनाहगार ना रहे। और कहता है क्यों कर इसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे, क्यों कर आइंदा में जिंदगी गुजारे। हमें हम जो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने के बपतिस्मा, मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। हमें क्या किया जी? तुम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, और फिर क्या हुआ? और लिखा तुमने मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। आमीन। खुशखबरी का पैगाम यीशु मसीह का मरना, खुशखबरी यीशु मसीह का क्या है जी? मरना और मरकर मुर्दों में से जी उठना है। आमीन। यहां पर तो खुशखबरी का पैगाम दिया गया। आज लोग जब तक खुशखबरी के पैगाम को नहीं समझेंगे, जब तक यीशु के मरने और जी उठने के पैगाम को नहीं समझेंगे, ये बपतिस्मा का पैगाम उनको कहां पर समझ आएगा? अब बपतिस्मा का जो पैगाम है वो खुशखबरी के साथ मुंसलिक है। किसके साथ मुंसलिक है? यीशु के साथ मरने और जी उठने के साथ मुंसलिक है। आमीन। इसका नाकदम तस्वर है। अब जब मैं आपको बताता चलूं खुशखबरी के साथ कैसे, आप इसको आगे पढ़िए मेरे साथ। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से, ऊंची आवाज में, बस मौत में शामिल होने के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए
ताकि जिस तरह मसीह पाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम नई जिंदगी में चले, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पवस्त हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाहबत से भी उसके साथ पवस्त हो गए। आमीन। क्या है? अब खुशखबरी का पैगाम बपतिस्मा का पैगाम है। क्या है जी? अब जब बपतिस्मा का पैगाम खुशखबरी का पैगाम इसलिए है क्योंकि खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसी तरह जब तक हम नहीं मरेंगे उस वक्त तक हम जी नहीं उठेंगे। आमीन। लोगों के अंदर गलत थीम आ गया, गोता नहीं भाई, गोता ये नहीं होता। जब बपतिस्मा दिया जाता है तो किसी को ऐसे रखा जाता है जैसे दफन किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे शायरबानी। जैसे क्या जी? अब जो आप शायरबानी लेते हैं वो क्या होता है? यीशु का खून होता है। लेकिन वो कैसे तैयार की जाती है? पानी से शीरे के साथ तैयार की जाती है। इसके बड़े तरीके हैं, लेकिन हम जो तैयार करते हैं वो हम किशमिश से तैयार करते हैं। ये वो जो उसको उबालते हैं, उसके अंदर फिर उसको स्कैन करते हैं, फिर हम करते हैं। ठीक है, हम जूसेस वगैरह यूज नहीं करते, हम अपने चर्च के अंदर जब करते हैं। तो जो रोटी है वो यीशु मसीह का क्या है जी? बदन है, यीशु मसीह का गोश्त है। लेकिन ये एक मुशाबत है। क्या है? इसी तरह पानी का बपतिस्मा भी क्या है? इसका गोते के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसका गोते के साथ ये इजहार है, जिस तरह यीशु मसीह मर गया, मैं भी मसीह के साथ। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। ये इजहार है, जिस तरह तुम नहीं जानते। इसीलिए जब खुशखबरी का पैगाम क्या है कि यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से क्या है जी उठा। हालेलुया। ये एक मुशाहबत है। जब हम पानी के अंदर किसी को लेकर जाते हैं, फिर उसको पानी के अंदर खड़ा किया जाता है, फिर उसको जो है वो ऐसे जमीन पर उठाया जाता है जैसे किसी को कब्र में रखा जाता है, फिर उसको उठाया जाता है। किस बात का इजहार है? जितने मसीह यीशु में मर गए, जिस तरह मसीह मर गया, दफन किया गया, पानी ऊपर आ गया, वो क्या हो गया जी? दफन किया गया। और फिर क्या हुआ? जब उसको उठाया गया, इस बात का इजहार किया गया कि जिस तरह मसीह मुर्दों में से जी उठा, बपतिस्मा लेने वाला इस बात का इजहार करता है कि मैं भी मुर्दों में से जी उठूंगा। आमीन। इसका मफहूम क्या है? मैं भी जी उठूंगा। आमीन। पानी की यहां तक बात है। जमीन कहां से निकाली गई? जमीन कहां से निकाली गई? पहले क्या था? अब पुराना आदम पानी के अंदर नहीं जाएगा तो नया आदम कहां से निकलेगा? आमीन। पुराना आदम, गुनाह वाला आदम, नाफरमानी वाला आदम जो है, वो जब पानी के अंदर जाएगा फिर नया आदम पानी के अंदर निकलेगा। आमीन। ये गुनाह वाले